Praise the Lord. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, Lenin. Good to see all of you. Thank you all for joining class this morning. How are, आप सभी के सुंदर चेहरे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को जुड़ने के लिए हमारे साथ में बहुत बहुत शुक्रिया। how are all of you this morning? आप सभी कैसे हैं आज सुबह? Good? Okay. So today we're going to begin studying our second book, the second APC publication, Receiving God's Guidance. और आज से हम जो है एपीसी पब्लिकेशन की दूसरी पुस्तक परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करना आरंभ करेंगे। So online students, I have posted the PDF copy. It's on the stream page. You can access it. और जो ऑनलाइन छात्र हैं उनके लिए पीडीएफ के फॉर्म में ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया। And our e-learning students also, I have put it up in the e-learning platform. और ई-लर्निंग के लिए भी ई-लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर डाल दिया गया। And I'm sure all of you in-person students have a copy of this. और विश्वास करते हैं आप सभी जो यहाँ मौजूद हैं आपके पास इसकी कॉपी है। Okay, so let's begin. We'll study this publication. और आइए हम आरंभ करते हैं इस पुस्तक के अध्ययन का। Okay, before that, let's pause for a word of prayer. Who can lead us in prayer, please? Anyone? इससे पहले कि हम आगे Yeah. बढ़े हम कोई भी Yes, madam. Okay, Lenin. Most gracious Heavenly Father, this is. Thank you, Lord. Thank you for this wonderful morning. Lord, we commit entire day into your hand. Please, Lord, you bless us. And also, we are going to start the new course. Please, Lord, teach us. And also pray for Madam and all the students. Please, Lord, help us to learn. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lenin. Okay, Thank you. so before we begin studying this book, और इससे पहले कि हम इसका अध्ययन आरंभ करें किताब का I'd like to mention that some of the things that have been mentioned in this publication has already been taught in the book Fulfilling God's Purpose for Your Life. और देखिए इस किताब के अंदर में कई सारी बातें हैं जो पहले से ही आपको सिखा दी गई है जब हम परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन के अंदर में परिपूर्ण करने की पुस्तक के ऊपर में अध्ययन कर रहे थे। Now, since I went through quite an in-depth study of that first publication that we studied, और जो पहली पुस्तक हमने पढ़ी थी हमने बड़ी गहराई के साथ में उस पर अध्ययन किया है। and some of the things are repeated here, but I will not be repeating the explanations. Okay. और उसमें से कई सारी बातें इस पुस्तक के अंदर में दोहराई गई हैं तो जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं उन बातों को ज्यादा दोहराऊंगी नहीं। So, what has already been taught earlier, I'll just briefly mention and we will move forward. और जो पहले सिखाया जा चुका है उसे बड़े ही कम शब्दों में समझाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। So, if you still have some doubts, then you can stop and ask, and I will re-explain it. और फिर भी अगर आपको कोई संदेह होता है तो आप बीच में हमें रोककर पूछ सकते हैं हम आपकी सहायता करेंगे। So, don't think I'm skipping content. It's just because it's already been explained. और ऐसा Okay. मत सोचिए कि हम छोड़कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उसका मतलब ये है कि हम पहले से आपको समझा चुके हैं उस पर अध्ययन कर चुके हैं। Is that fine? सही है? Okay. So, do we need God's guidance in our lives? क्या हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता है? Do we need God's guidance in various matters of our lives? और हमारे जीवन के विभिन्न भागों के अंदर हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता है? Do we need it only for big matters or even for small matters? क्या हमें केवल बड़े-बड़े मुद्दों में ही परमेश्वर की सहायता चाहिए या छोटे बातों में भी चाहिए? I think big and small, right? और बड़े और छोटे सभी में। And we are so blessed and so privileged that, we have God as our guide. Amen? और देखिए परमेश्वर हमारा एक अगुवाई करने वाला है तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और आशीषित जन हैं। And we can receive His guidance every step of the way. और हर एक मार्ग के हर कदम पर हम परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त कर सकते Now, हैं। the Bible does not give us a fixed formula of God's guidance. और लेकिन बाइबल हमें कोई भी एक सूत्र ऐसा प्रदान नहीं करता है जहां पर हमें बाइबल का अगुवाई एक ही प्रकार से मिलता रहे। There is no set method that the Bible gives us, but the Bible clearly says that God guides us
and He answers us. और कोई भी ऐसा नियमित तरीका नहीं है, लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट इस बात को कहती है कि परमेश्वर हमारी अगुवाई भी करता है और उत्तर भी देता है। So we're going to look at 11 different ways in which the Bible shows us that we can understand or we can, experience God's guidance in our lives. और हम 11 तरीके को देखेंगे और परमेश्वर जिनके द्वारा हमसे हमारी अगुवाई भी करता है और हमें मार्गदर्शन भी करता है। So if you look at the introduction to the book, और यदि आप किताब के परिचय को देखेंगे, there are 11 of them listed there. और वहां पर 11 बातें जो है दर्शाई गई हैं। So can we read it all together, please? और क्या हम सभी उन बातों को पढ़ सकते हैं? Yes? हाँ। Let's go. The first one, the word, और सबसे पहला वचन, the voice of the Holy Spirit, राधा की आवाज, I thought all of you will read together. Okay, doesn't matter. Anyway, good that you all read it. Okay. और अच्छा है आप सभी ने पढ़ लिया, सोचा था मिलकर पढ़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। So we look at 11 different ways the Bible shows us how God releases His guidance in our lives. और हमने करीब 11 तरीकों को देखा कि परमेश्वर अपने मार्गदर्शन को हमारे जीवन में कैसे व्यक्त करता है। Now, we already studied some of this in detail in our first publication. और हम पहले ही अपनी पुस्तक के अंदर में इनमें से कई सारी बातों को बहुत गहराई के साथ अध्ययन कर चुके हैं। We look at it in a little more detail as well. और हम उसके साथ साथ अभी भी थोड़ा और विवरण से इसको देखेंगे। Now, we need to understand that God is genuinely interested in the decisions that we make. और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ईमानदारी के साथ में इस बात पर रुचि रखता है कि हम कौन से निर्णय अपने जीवन के अंदर में लेते हैं। Sometimes we think God does not care about our choices, और कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर को हमारे चुनावों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, but He truly does. और लेकिन सच में उसे फर्क पड़ता है। And He has promised to give us guidance. और उसने वायदा किया है कि वो हमें मार्गदर्शन प्रदान करेगा। So let's look at chapter 1 और आइए हम पहला अध्याय देखें। and look at page number 1, the scripture verse on Psalm chapter 37, 23 and 24. So everyone can read it by yourself. और यदि हिंदी में आप देखेंगे तो 3 नंबर के पेज पर है भजन संहिता 37 उसका 23 और 24। हर एक जन अपने लिए उसको पढ़ सकते हैं। Psalm 37, 23 and 24. भजन 37 उसका 23 और 24। What does the Lord order here? और परमेश्वर यहाँ पर क्या आज्ञा दे रहा है? The steps of a good man. और एक भले व्यक्ति के चाल चलन के बारे में। So good man is basically talking about a man who's courageous or a woman who's courageous or a valiant, courageous man or woman. और देखिए एक भला व्यक्ति यहाँ एक भला पुरुष या स्त्री जो कि बड़ा हियावी और बलवंत व्यक्ति है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। So what does God do regarding the steps of a courageous or a valiant man or woman? और परमेश्वर एक हियावी पुरुष या स्त्री के प्रति क्या करता है? What does He do first? और सबसे पहले परमेश्वर क्या करता है उसके प्रति? First is what? Look at the first one. What does God do? और परमेश्वर क्या करता है? Yes, He orders it. और परमेश्वर उसे आज्ञा देता है। The word ordered here means made perfect, made firm, set up or directed. और देखिए इसका मतलब होता है कि परमेश्वर उसे दिशा निर्देश करता है, उसे दृढ़ करता है, उसे स्थापित करता है। So what does it mean here? It says that God makes your steps and my steps firm, perfect,
and He directs it. और इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर मेरे कदमों को स्थापित करता है, दृढ़ करता है और अगुवाई करता है। Isn't that wonderful? और क्या ये बड़ी बात नहीं है That the Lord takes pleasure in the way that you and I are going. और जिस मार्ग में मैं और आप चल रहे हैं, परमेश्वर उसको देखकर उसमें आनंदित होता है। So if you look at the Amplified Version, page number 2 for the English books, और यदि आप अंग्रेजी में एम्प्लीफाइड वर्जन में देखेंगे तो it says that God busies Himself with every step that we take. और वो कह रहा है कि परमेश्वर जो है हर एक कदम जिसे हम लेते हैं, परमेश्वर उसमें प्रफुल्लित होता है। That means that every single step you take, God is interested in it. और इसका मतलब है हर एक कदम जो आपने उठाया, परमेश्वर उसके अंदर में बड़ा रुचि दिखाता है। He's personally involved and attentive of the every step that you are taking. और व्यक्तिगत रीति से हर एक कदम जो आप उठाते हैं, परमेश्वर अपने आप को उसमें शामिल करता है। Ma'am, it's too much here. I have a question here. Yes. When Peter asked, when Peter told Jesus that he's good, so Jesus explained saying that except the Heavenly Father, nobody is good. So on what context is this mentioned, good man? So here I said the good man is basically, if you look at it in the Hebrew, it's a courageous or a valiant man. और देखिए आपका प्रश्न है कि आपको यीशु पतरस ने जब भला गुरु कहा तो यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर को छोड़ कोई भला नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भला मनुष्य किस बात के लिए दर्शाया गया है? तो इब्रानी भाषा में हम इस बात को देखते हैं, भला मनुष्य यानी कि वो व्यक्ति जो हिम्मती है और हियाव रखता है। So it's there in your book, page number 1. A man who's courageous, a valiant man, a warrior. और अगर आप हिंदी में देखेंगे तो वहां स्पष्ट रीति से लिखा है भला मनुष्य यानी कि शाब्दिक तौर पर साहसी मनुष्य, बहादुर और योद्धा। So we see here that God is interested in the path that we take, in the decisions that we make, and the life choices that we make. और हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर हमारे मार्ग में हमारे प्रति खुश होता है, उन निर्णयों के प्रति जो हम लेते हैं, उन जीवन चुनावों के प्रति जो हम निर्माण करते हैं। Now imagine this great God of the universe who's omnipotent, who's omniscient, who's omnipresent, actually is very busy with every step that you and I take. और देखिए कल्पना करके देखिए, ये परमेश्वर जो ब्रह्मांडीय परमेश्वर है, जो हर जगह मौजूद है, हर चीज को जानता और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो इतना व्यस्त है, लेकिन फिर भी हर एक कदम जो हम लेते हैं उस पर बात करता, ध्यान देता है। That means every step, every choice you and I are making, God is interested in it. और इसका मतलब ये है कि हर एक कदम जो हम लेते हैं, हर एक चुनाव जो हम करते हैं, परमेश्वर उसमें रुचि दिखाता है। Now coming back to Psalm 37 verse 25, और जब हम भजन 37 उसके 5 वचन में आते हैं, it says, even though we fall, even though we make mistakes, even if we stumble, even if we falter, this verse says it's not the end of everything. और भले ही हम गलती कर जाएं, भले ही हम भटक जाएं, हम गिर जाएं, वचन का ये अंत कहता है, ये हमारा अंत नहीं है। So this verse tells us, though he falls, though he or she falls, they will not be utterly cast down because God is upholding us with his hand. That means God is holding us firm in his hand. और वचन इस प्रकार से हमें बतलाता है कि चाहे वे गिर भी पड़ जाएं और गिर जाएं, लेकिन वो गिरे हुए नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उन्हें थामे रहता है। That means God is holding you. He grasps you in his hand. He supports you and he upholds you. और इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपके हाथ को पकड़ा रखा है, परमेश्वर ने आपको सहारा दे रखा है। वो इस बात को पक्का करता है कि आपकी यात्रा में
वो आपके साथ बना रहेगा। So you need to have this assurance even as you're going through life, journeying through life, that the God of the universe, who's all powerful, who's omnipotent, is actually holding on to your hand. He's grasped your hand. You can never fall. और आपको इस बात को अपने आप को पक्का करने की आवश्यकता है कि जब आप अपने जीवन की यात्रा के अंदर में हैं, तब ये ब्रह्मांडीय परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उसने आपके हाथ को पकड़ के रखा है। वो आपको फिसलने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा और ना ही आपको भटकने देगा। So you will not slip, you will not fall, you will not falter. और आप ना तो गिरेंगे, ना फिसलेंगे, ना भटकेंगे। So let's look at another verse, और page आइए number हम 2, एक और वचन को देखें। Psalm 32, verse 8 and 9. और भजन 32 उसका 8 और 9। So all of you can read that quickly by yourselves, please. Psalm 32, 8 and 9. और जल्दी से आप सभी उस वचन को पढ़ ले। भजन 32 उसका 8 और 9। So what is God saying here? और परमेश्वर यहाँ क्या कह रहे हैं? He will instruct us, teach us in the way that we have to go. और जिस मार्ग में हमें चलना है, परमेश्वर हमें उसमें शिक्षा भी देगा और अगुवाई भी करेगा। His eyes are on us. और उसकी आंखें हम पर लगी हुई हैं। His God's eyes are watchful eyes. और परमेश्वर की आंखें हम पर लगी हुई हैं। Just like a mother, और जिस प्रकार से एक माता, if she has a small child at home, her child is small and at home. और यदि घर के अंदर एक छोटा बालक है, So even if the mother is doing the dishes or mopping or cleaning or whatever she's doing, her eyes will be constantly be on the child. What the child is doing, how the child is, where the child is. और देखिए अगर माता घर के अंदर में चाहे खाना पका रही हो, बर्तन साफ कर रही हो, कपड़े धो रही हो, कुछ भी कर रही होगी, उसकी आंखें बच्चे के ऊपर में सदा लगी रहती है कि बच्चा क्या कर रहा है। The same way God's eyes are always on you. और बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर की आंखें सदा सदैव आपके ऊपर में लगी हुई रहती And the हैं। psalmist tells us that God neither slumbers nor sleeps. और भजनकार कहता है हमारा परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँघता है। We don't have to wake God up. और हमें परमेश्वर को उठाने की आवश्यकता नहीं है। And his eyes are always watching over us. और उसकी निगाहें हमेशा हम पर टिकी रहती हैं। Amen. आमीन। And he says, I will instruct you and teach you. और वो कहता है कि मैं तुझे निर्देश भी दूंगा और शिक्षा भी दूंगा। Amen. आमीन। So you can pray and say, God, teach me, how I need to study, or teach me how I need to read your word, or teach me how, I have to live my life. God, instruct me in your ways. और आप प्रार्थना करके परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर आप मुझे शिक्षा दीजिए कि किस प्रकार मुझे अध्ययन करना है, किस प्रकार आपके वचन को पढ़ना है, किस प्रकार अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर आप मुझे निर्देश दीजिए। Now, if you study these words in Hebrew, because this is from the psalmist, from Psalms, and Psalms in the Old Testament is written by Hebrew, it will give us an even greater significance or a richer meaning. और यदि आप इब्रानी भाषा में इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये भजन से लिया गया है और भजन पुराने नियम के अंदर में लिखा है, जो कि इब्रानी भाषा में लिखा गया था, तो इब्रानी भाषा में इन शब्दों के मायने यानी कि अर्थ जो है और गहरे हैं। So if you look at this phrase, I will instruct you in the Hebrew, it means God is saying, you will be intelligent, prudent, and wise. और यदि आप इस कथन को कि मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा इब्रानी भाषा में देखें, तो इस प्रकार से परमेश्वर कह रहा है कि तू बुद्धिमान होगा, समझदार होगा और ज्ञानवान होगा। And he's meaning to say that I will give you the skills for your success. और इसका मतलब ये है, परमेश्वर कहना चाह रहा है कि मैं तुझे सफलता के कौशल प्रदान करूंगा। How many of you want to be successful in life? और आप में से कितने लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं? Yeah, everybody wants to be. और हर एक जन सफल होना चाहता है। Yes, many of you, but here God is promising us that I will give you the skills to make you successful. और आप में से अधिकतम सभी सफल
सफल होना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ वायदे कर रहा है कि तुम्हें सफल होने की जो कौशल है मैं प्रदान करूंगा। So just don't pray and say, God, instruct me and teach me. You can also say, God, give me the skills to be successful. और केवल ये प्रार्थना ना करें कि परमेश्वर आप मुझे सिखाए कि मैं कैसे सफल हूं, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं परमेश्वर सफलता के लिए जो कौशल की आवश्यकता है आप मुझे प्रदान करें। Now he also says that I will teach you. और वो ये भी कह रहा है कि मैं तुझे सिखाऊंगा। So in the Hebrew, the meaning for teach has a very figurative picture. और देखिए यदि इब्रानी भाषा में हम देखें शिक्षण के लिए तो इसका एक बहुत ही आकृतिक चित्र है जो दिया गया है। It means somebody is pointing a finger at. और इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी चीज के ऊपर उंगली रख रहा या दिखा रहा है। So for example, if you ask somebody, hey, how do I go to APC Bible College, or how do I go here, or how do I go there? और यदि आप ऐसे सोचें, कुछ मान लीजिए आप किसी पूछ रहे हैं कि अरे एपीसी बाइबल स्कूल कॉलेज में मुझे कहाँ जाना है या कहीं पर भी किसी कहाँ पर कहीं जाना है, So they'll basically point the finger and say, go like this, go right, go straight, dead end, and then you'll find the place there. और लोग बताएंगे यहाँ से सीधा जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, फिर दाएं मुड़ जाना, फिर सीधा जाना, फिर बाएं मुड़ना, तुम्हारे उल्टे हाथ के दाएं में मुड़कर नहीं जाएगा। They will point a finger and give you the और directions. वो आपको उंगली दिशा निर्देश करेंगे। So that is what God is saying. He'll point the finger and show you the direction. और वही परमेश्वर भी कहना चाह रहा है कि मैं उंगली दिखाऊंगा और तुम्हें दिशा दर्शाऊंगा। Another picture is of a man, shooting an arrow. और एक और तस्वीर यहाँ एक व्यक्ति जो तीर से निशाना लगा रहा है। So when somebody is shooting the arrow, they shoot it at the target, right? And they want to get their target. और जब कोई निशाना साधता है तो वो निशाने पर अपने तीर को लगाना चाहता है। So God is saying, I have your target in my mind. और परमेश्वर कहता है बेटा तू मेरे निशाने पर है। I know the way you need to go, और मुझे पता है कि तुझे कौन से मार्ग में जाना है। the plan you need to follow, और जिस योजना को तुझे अनुसरण करना है वो भी जानता हूँ। and what you need to do और तुझे क्या करना है in that circumstance or in that situation. और उस परिस्थिति के अंदर में उस समस्या के मध्य में। So I'm pointing my finger and showing you the way. और मैं अपनी उंगली दिखा कर तुझे उस मार्ग को दिखला रहा हूँ। I have the target in my mind and I will show you. और मेरे मन के अंदर में वो निशाना है जो मैं तुझे दिखाऊंगा। And all we need to do is just obey and follow his और हमें instructions. केवल इतना करने की आवश्यकता है कि हम उसकी आज्ञा माने और जैसा वो कहता है वैसा हम उसका पालन करें। So what else does God do in Psalm 32 verse 8? He says, I will instruct you, teach you, and also I will. और 32 के 8 में क्या कह रहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना है तेरी अगुवाई करूंगा, तुझ पर कृपा दृष्टि दूंगा और सम्मति दिया करूंगा। I will guide you. और मैं तेरी अगुवाई करूंगा। Guide means I will advise you and counsel you. और देखिए अगुवाई का मतलब है कि मैं तुझे ले भी चलूंगा और सलाह भी प्रदान करूंगा। Can you imagine how important we are to God? और क्या आप कल्पना करके देख सकते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कितने मूल्य रखते हैं। You might not matter to people, or you might not matter to anybody, but you matter to God, because he's saying, imagine the God of this universe cares so much that he says, I know exactly what you need in that situation. I know exactly what you want. I have it in my mind. I'm pointing the way. I'm showing you what to do, showing the person you need to go, showing you what you need to fulfill, what you need to do in life. और देखिए हो सकता है कि दुनिया के अंदर लोगों के लिए आप मायने ना रखते हो, लेकिन परमेश्वर के लिए आप इतने मायने रखते हैं कि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तुझे सटीक वो रास्ता बतलाऊंगा जो तुझे परिस्थितियों के मध्य में आवश्यकता है। तू मेरे मन में है, मैं तुझे दिशा निर्देश करूंगा, मैं तुझे दिखाऊंगा, उस व्यक्ति से मिलाऊंगा जो व्यक्ति तेरे जीवन के लिए तुझे आवश्यक है। मैं तेरी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए रास्ता दिखलाऊंगा। तुझे केवल इतना करना है कि मेरी आज्ञा को मान और मेरे पीछे पीछे चल। Amen. आमीन। So we just need to follow him and obey him. और हमें केवल परमेश्वर की आज्ञा मान परमेश्वर के पीछे चलने की आवश्यकता है। So isn't that exciting? और ये बड़ा उत्साह की बात है या नहीं है? Aren't you all excited? आप उत्साहित नहीं है? Okay, he's there to advise us and counsel us. और वो है हमें सलाह देने के लिए, निर्देश देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। So the Lord has promised to guide, instruct, teach, counsel, and give us the wisdom, skill,
knowledge and understanding that we need as we go through life. Amen. और परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि वो हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमें शिक्षण देगा, हमें प्रशिक्षित करेगा, सलाह देगा और हमें बुद्धि प्रदान करेगा, कौशल प्रदान करेगा, ज्ञान प्रदान करेगा, समझ प्रदान करेगा जीवन के हर उस मार्ग के लिए जो हमारे लिए आवश्यक है। आमीन। So the Psalms 32, he also tells us that even though God is pointing his finger and showing us the direction, instructing us, giving us the skills, there is a response that is required from our end. और देखिए 32 भजन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां जरूर परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर उंगली से हमें दिशा निर्देश कर रहा है, अगुवाई कर रहा है, शिक्षण दे रहा है, योग्यताएं दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारी ओर से एक चीज की आवश्यकता है जो हमारी ओर से हमें करना चाहिए। So in the Bible, when we read, we see that God does not work, arbitrarily or randomly. He works along with us. He co-labors, co-partners with us to fulfill, what He has planned and purpose in our lives. और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर को इस प्रकार देखते हैं कि परमेश्वर अकेला या अपने मन मर्जी जब मन करे तब काम नहीं करता। परमेश्वर हमारे सहयोग से हमें सहकर्मी बना के और हमें परमेश्वर का और परमेश्वर हमारा सहकर्मी बनकर हमारे लिए कार्य करता है। Yes, God is going to guide us, lead us, instruct us, teach us, but He looks for a response from us. He looks for us to co-labor with Him. और देखिए परमेश्वर जरूर अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा, शिक्षण करेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर को हमारी ओर से सहयोग की आवश्यकता है, हमें अपना सहकर्मी बनाकर कार्य करता है। So in verse 9 of Psalm 32, what is the psalmist telling us not to be like? और देखिए भजन 32 के 9 में भजनकार हमें किस प्रकार का ना होने के लिए कह रहा है? Don't be like the horse or the mule. So what is he meaning when he says don't be like the horse or the mule? और जब परमेश्वर कह रहा है घोड़े और खच्चर के जैसे ना हो तो उसका मतलब क्या है? घोड़े खच्चर जैसे कैसे ना हो? They have no understanding. Okay, yes. When they are not harnessed, they don't follow the instructions. The horse does not follow the instructions of the master. Very good. और जब अगर लगाम ना कसे तो घोड़ा अपनी मर्जी से चलता है, बिल्कुल मार्ग पर नहीं चलता। What about the mule? और खच्चर का क्या है? Very adamant, very stubborn. Yes. बड़ा ही ढीठ होता है। So what is the psalmist saying here? और भजनकार क्या कह रहा है? Don't be like the horse that runs ahead of God. और देखिए ऐसे घोड़े ना बने जो परमेश्वर के आगे दौड़ने का प्रयत्न करें Walk beside him. और उसके संग चले। So you need to say, God, you're holding my hand. और जब आप कह रहे हैं परमेश्वर आप मेरे हाथ को पकड़े हैं I will take the steps you are showing me. और जो कदम आप दिखा रहे हैं उन्हीं कदमों को मैं चलूंगा। So walk alongside God, don't run ahead of him. और परमेश्वर के आगे दौड़ने का प्रयास ना करें, उसके संग संग चलने का प्रयास करें। Because when we walk ahead of him, that's when we mess up and that's when we make the wrong choices. और जब हम परमेश्वर के आगे दौड़ने का प्रयास करते हैं वहीं पर हम गड़बड़ी करते हैं, वहीं पर हम गलत चुनावों को लेते हैं। And at the same time, don't be like the mule, stubborn. और उसी समय पर उस खच्चर जैसे ढीठ भी ना हो। Don't hold back and say, God, no, I'm not going to do this. और आप ऐसे मत करें कि नहीं मैं नहीं करने वाला ऐसा। Because I don't see the clarity. I don't see the bigger picture. I don't understand what you're telling me. और क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना तो मैं उसे समझ रहा हूँ, ना मैं उसे देख पा रहा हूँ, ना ही उसके अंदर में कोई बड़ी आकृति मैं देखता हूँ। I'm not able to understand why you're telling me to go there or do this. और मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि वहां चला जा या फिर ये कर। So don't be like the mule that is stubborn, hard to move forward or resistant. और आप उस खच्चर के समान ढीठ ना बने जो मानने को तैयार नहीं है, हिलने को तैयार नहीं है। So we need to avoid these postures. और हमें इन क्रियाओं से अपने आप को बचाए रखने की आवश्यकता है। Instead, we need to tell God, God, you're guiding me. और आपको इसके इजाफे में परमेश्वर से कहना, परमेश्वर आप मेरी अगुवाई कर रही हैं I want to walk alongside you. और मैं आपके
संग चलना चाहता हूँ। And like you promise, like you instruct and teach and guide me, I will follow you. और जैसे ने आपने मुझे निर्देश दिया, जैसे आप मेरी अगुवाई कर रहे हैं, मैं आपके नियमों का पालन करना चाहता हूँ। And you can even tell God, God, let's do this together. और आप ये भी कह सकते हैं, परमेश्वर आइए मिलकर हम इस कार्य को करते हैं। All of you with me? आप मेरे संग हैं? Yes. Okay, let's look at another scripture passage. Quickly read Psalm 25, verse 12. Psalm 25, verse 12 on page number 3. और आइए जल्दी से भजन 25 उसका 12 वचन पढ़ेंगे, जो हिंदी 5 नंबर के पेज पर है। Done? Now, the Good News Bible says, what does the Good News Bible say? Can somebody read that? It's in italics in the next para. और गुड न्यूज़ बाइबल आपकी कॉपी में Those who have reverence for the Lord will learn from him the path they should follow. Amen. Thank you. So, what does this mean? और इसका मतलब क्या है? What does reverence mean? और आदर का मतलब क्या है? Obedience and following with God's Okay, obedience, following his instructions, submitting to God, obeying him, and taking his instructions seriously, having a heart attitude that says, God, I'm willing to submit, I'm willing to obey, I'm willing to follow your instructions. This is reverence. और देखिए, आदर का मतलब होता है परमेश्वर की आज्ञा मानना, परमेश्वर के निर्देशों को गंभीरता से लेना, हमारे हृदय का भाव और इस बात को कहना, परमेश्वर मैं आपकी इच्छा के प्रति समर्पित हूँ, मैं आपकी आज्ञा मानना चाहता हूँ, मैं आपके निर्देशों का पालन करना चाहता हूँ। ये आदर करना कहलाता है। So when you have reverence for the Lord, what will happen? और जब हम परमेश्वर के प्रति आदर रखते हैं तो क्या होता है? Look at the one that's in italics, the Good News translation. What happens when you have reverence for the Lord? और जब परमेश्वर का आदर करते हैं तो क्या होता है? Come on. Yes, you will learn from him the path that should be followed. और देखिए, आप उस मार्ग को सीख पाएंगे जिसका अनुसरण करने की आपको आवश्यकता है। So now you might ask, if God is so eager to guide us, और आप पूछ सकते हैं, यदि परमेश्वर अगुवाई करना ही चाहता है, if he busies himself with every step that I take, और हर एक कदम जो मैं लेता हूँ परमेश्वर उसमें रुचि रखता है, if he's so passionate and interested in every choice that we make, और हर एक चुनाव जो हम करते हैं परमेश्वर बड़ी चाह के साथ ही उसमें रुचि रखता है, why is it that sometimes I ask God to lead me and I don't seem to get an answer from him? और तब ऐसा क्यों है कि कई बार मैं परमेश्वर से कहता हूँ, परमेश्वर आप मेरी अगुवाई करिए, और मुझे परमेश्वर का उत्तर ही उसमें नजर नहीं आता है। What do you think is the answer? और आप क्या सोचते हैं इसका उत्तर क्या होगा? From what we studied, what do you think is the reason? और अभी तक जो पढ़ा है, आप क्या सोचते हैं इसका कारण क्या होगा? We don't have reverence, yes. और हमारे पास परमेश्वर के प्रति आदर नहीं है, ठीक है? Adamant, और हम बड़े ढीठ हैं, stubborn. कठोर हृदय, We are not willing to co-work with him. और हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी नहीं बनना चाहते, We have not come to that place of obedience, submission, and surrender. और हमने समर्पण, आज्ञाकारिता और अधीनता के अधीन नहीं आए होंगे, We may not be taking his instructions seriously, or we might not have a right heart attitude. और हो सकता है कि शायद हमने उसके निर्देशों को गंभीरता से ना लिया हो और ना ही सही हृदय के भाव से उसे ग्रहण किया हो। Sometimes we say, God, I'm in a mess, remove me from this mess. और देखिए, कई बार हम ऐसा कह सकते हैं, परमेश्वर मैं तो गड़बड़ी के अंदर फंस गया, कृपया कर मुझे इसमें से बाहर निकालें। And God is saying, I will take you out of the mess, but I want you to learn something before that. और परमेश्वर कहता है जरूर निकालूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बेटा थोड़ा सा इसमें रहते हुए सीख जाए। There are some character issues, there are some attitude issues that need to be dealt with first. और कुछ चरित्र की बातें हैं, कुछ व्यवहार की बातें हैं जिन्हें पहले सुधारना आवश्यक है। So if you refuse to learn those things, you want a quick escape, you don't have a right attitude,
that is not reverence. और देखिए, यदि आप उसको सीखने से इनकार करते हैं या आप उससे निकल जाते हैं, तब आपका हृदय सीखने के प्रति या परमेश्वर के आदर के प्रति सही नहीं है, And that is not reverence. और वो आदर नहीं कहलाता। So, yes, God guides and leads us, और परमेश्वर जरूर हमारी मार्गदर्शन करता है, अगुवाई करता है, but we need to cooperate with Him in all of these areas. और लेकिन हर एक क्षेत्र के अंदर हमें परमेश्वर के सहयोग करने की आवश्यकता है। So, we look at, the revelation of God's will, और हम परमेश्वर की इच्छा के प्रकाशन को देखेंगे, how God reveals His will to us. और परमेश्वर किस प्रकार अपनी इच्छा हम पर प्रकट करता है। Some of these things we've already looked at in the previous publication. और पहले ही जो पुस्तक हमने पढ़ी है उसमें से हम कई बातों को देख चुके हैं। So, what is the first one? सबसे पहले क्या है? God's will, guidance, and leading are always consistent with His nature, right? परमेश्वर की इच्छा, मार्गदर्शन, अगुवाई हमेशा उसके स्वभाव से सुसंगत होती है। We've already studied this, so we'll move on to the second one. और हम इसे पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम दूसरे बिंदु पर चलेंगे। What is the second one? और दूसरा क्या है? God's will, guidance, and leading is always consistent with His word, right? परमेश्वर की इच्छा, मार्गदर्शन और अगुवाई हमेशा उसके वचन से सुसंगत होती है। So, in fulfilling God's purpose for your life, we looked at 9 guideposts. One of them is the nature of God, one of them is the word of God. और देखिए, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के अंदर में परिपूर्ण करते समय हमने 9 ऐसे पद चिन्ह देखे थे पूर्ण करने के लिए। So, we've already studied that, but I just want to mention something here. और देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ किसी बात को कहना चाहेंगे। Sometimes in our understanding, we can misinterpret or misunderstand the Bible, the scripture. और कई बार हम अपनी समझ के अंदर में बाइबल या वचन का गलत अर्थ निकाल सकते हैं या गलत अनुवाद भी कर सकते हैं। Now, at such times, God corrects us with His word. और ऐसे समयों पर परमेश्वर अपने वचन से हमें सुधारता है। Now, for example, when Jesus was on the earth, He went around healing people on the Sabbath. Yes or no? और उदाहरण के लिए, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो सबत के दिन में भी यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। सही था या गलत है? So, were people happy with that? और लोग खुश थे क्या उससे? The Pharisees were offended, man. Yeah, the Pharisees were not happy with that. और फरीसी लोग खुश थे। The Pharisees, scribes, the teachers of the law, the high priest, they were not happy. और फरीसी, सदूकी, व्यवस्था के व्यवस्थापक और महायाजक लोग नाखुश थे उससे। So, what did they tell Jesus? Hey, you're breaking the Sabbath law. और वो यीशु से क्या कहते हैं? सुन भाई, तू तो सबत के नियम को तोड़ रहा है। So, even when the disciples were hungry, they picked up that grain of wheat and they were eating. And the religious leaders are very offended and they questioned Jesus, why do you break the Sabbath law? और देखिए, जब चेले भूखे थे तो गेहूं के खेत से निकल रहे थे, उन्होंने बालें तोड़ी और उन्हें मलकर खाने लगे, तो फरीसी लोग बड़े ही नाराज हो गए कि तू सबत के दिन को क्यों तोड़ता है, उसका अनाज्ञाकारिता क्यों करता है। What does Jesus say? और यीशु मसीह ने क्या कहा? Sabbath was made for? और सबत किसके लिए बनाया गया है? Hello, all of you read the Bible? और आप For us only, madam. For he was referring the Old Testament reference about David. The David, they ate the bread of priest. No, That what did Jesus say about the Sabbath? और सबत के बारे में यीशु मसीह ने क्या yeah, it is better to healing to do the good work on Sabbath. He says Sabbath was made for man and not man for Sabbath. और यीशु Yes, ma'am. ने दिया, सबत मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य सबत के लिए नहीं। Anyway, thank you for trying, Lenin. So it says Sabbath was made for man, but not man for Sabbath. But what does Jesus mean? और देखिए, जब यीशु ने कहा कि सबत मनुष्य के लिए बनाया गया, मनुष्य सबत के लिए नहीं, तो इसका अर्थ क्या है? That means Sabbath was created for people to rest, to rejuvenate, and for give them time to worship and commune with God. It was never meant to become a legalistic burden, a ritualistic burden for them. और इसका मतलब है कि सबत जब लोगों के लिए ठहराया गया, तो वो उनके भले के लिए, उनके आराम के लिए, उन्हें पुनर्बल प्राप्त करने के लिए है, और इसके लिए कि वो परमेश्वर के साथ संगति
इसके मायने ये नहीं थे कि किसी भी रीति से ये लोगों के ऊपर में बोझ बन जाए. So when Jesus was saying that when people are doing good on the Sabbath, that means when they're showing love, kindness, compassion, forgiveness, and when they're healing people, Jesus made it clear that these acts were not against God's heart. और जब लोगों के मध्य में शब्द के दिन में भला काम किया जा रहा था, प्रेम दिखाया जा रहा, अनुग्रह, कृपा, समाधान, चंगाई दिया जा रहा था, यीशु ने स्पष्ट करके उत्तर दिया है कि ये सब परमेश्वर के विरुद्ध नहीं, परमेश्वर के हृदय के अनुसार परमेश्वर के कार्य किए जा रहे हैं. So the religious leaders were taking something that God had instituted and they were making their own interpretations of that. और धार्मिक नेताओं ने परमेश्वर के निर्धारित कुछ संस्थानों को लेकर अपने ही अनुवाद उनके करके अपने अर्थ उसमें निकाल लिए. So Jesus came to reveal the true meaning of his word and give the correct interpretation. और यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का सही अर्थ और सही अनुवाद निकाल कर लोगों को बतलाने के लिए आए. So another example we can look at is in the book of Acts. और एक और उदाहरण जो कि प्रेरितों की पुस्तक के अंदर में हमें मिलता है, हम उसे देख सकते हैं. Now Peter is very, very hungry. He goes up to the terrace. He's waiting for food to be cooked. और पतरस को बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, वो छत पर चला जाता है, खाने का इंतजार कर रहा था. And he sees a trance. In the trance, he sees a sheet coming down from heaven filled with all unclean animals. और वो बदहोश हो जाता है, और उसमें एक दर्शन देखता है कि स्वर्ग से एक चादर उतर रहा है और उसके अंदर में हर एक अशुद्ध प्राणी पाया जाता है. And God tells him, "Get up, Peter, kill and eat." और ये परमेश्वर ने पतरस से कहा, पतरस उठ, मार और खा. And what does Peter say? God, I cannot eat this because the law says that I cannot eat these unclean animals. और परंतु पतरस का उत्तर क्या था? पतरस कहता है, प्रभु मैं नहीं कर सकता क्योंकि व्यवस्था कहती है कि अशुद्ध है और इसे नहीं खाया जा सकता. So what does God do? He gives him a clear understanding or interpretation of what he has already said. He says, "What I have made clean, do not call as unclean." और परमेश्वर कर क्या रहा है? परमेश्वर उस बात को स्पष्ट कर रहा है जो पहले ही परमेश्वर कह चुका है, जिसे मैंने शुद्ध ठहराया उसे कोई मनुष्य अशुद्ध ना ठहराए. So later the Holy Spirit tells him, "Peter, go down. There are men looking for you. Don't ask any questions. They've come to take you to go to a man called Cornelius' house. Just go to his house." और बाद में हम देखते हैं पवित्र आत्मा ने पतरस से कहा, जा नीचे उतर, तेरे लिए कुछ मनुष्य तुझे ढूंढते आ रहे हैं, वह तुझे कुरनेलियुस के घर ले जाएंगे, बिना किसी सवाल किए चुपचाप वहां चले जाना. And when he goes to Cornelius' house, he understands he's a Gentile. He preaches the gospel. Even before he gives an altar call, everyone is cut to their heart. And as he is preaching, they start, speaking in tongues. That means they're baptized in the Holy Spirit. And Peter and all of the other Jews who went along with him are shocked and surprised. And that's when Peter realizes, hey, the vision that God gave him of clean and unclean, and not to call things that are unclean as clean, was here that he was showing him that the gospel was even for the Gentiles. और जब पतरस कुरनेलियुस के घर में जाता है, उसे पता चलता है कि वो एक जाति है, लेकिन पतरस के प्रचार करते समय ही उसने किसी को प्रभु को हृदय में बुलाने के लिए नहीं कहा, लेकिन पवित्र आत्मा हर एक सुनने वाले के हृदयों को छेद देता है, पवित्र आत्मा उन पर उतरता है, वे सब अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाते हैं. और जब इन बातों को पतरस देखता है, अचंभित होता है, उसके साथ में जो लोग गए वो भी अचंभित हो जाते हैं. पतरस को जो दर्शन परमेश्वर ने उसे दिया, उसे याद आ जाता है कि परमेश्वर ने कहा, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे कोई भी अशुद्ध ना ठहराए. So when we have misunderstandings about God's ways, instructions, teachings, guidance, he will correct us through his word. और जैसे ही जब हमारे पास में परमेश्वर के दर्शन वचन के बारे में गलत फहमियां होती हैं, गलत अनुवाद होता है, गलत अर्थ होता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे को सही करता है. So let's look at the third thing. और आइए हम तीसरे बिंदु को देखें. The third thing, how God reveals his will to us. और तीसरी बात कि परमेश्वर अपनी इच्छा को हम पर कैसे प्रकाशमान करता है. What is the third thing? और तीसरा क्या है? God's promises are revelation of God's will. परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की इच्छा का प्रकाशन है.
Do you know there are more than 3,000 promises in God's word for us? और क्या आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में हमारे लिए 3,000 वायदों से 3,000 वायदे हैं। And these promises are not just written for it to remain in the pages of the Bible. और ये वायदे इसलिए नहीं लिखे हैं कि बाइबल के पन्नों में ही दबे रहें। This is for us to know, speak, declare over our lives. और ये हमारे लिए है कि हम इन्हें जाने, विश्वास करें और अपने जीवन के ऊपर में इनकी घोषणा करें। So there are promises for every area and every situation that we face. और हर एक क्षेत्र और हर एक समस्या जिसका सामना हम करते हैं, हर एक बात के लिए उसमें दिया गया है। And God's promises indicates His will, His plan and purpose for your life and my life. परमेश्वर की जो वायदे हैं, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के हमारा जीवन के प्रति जो उद्देश्य है, उन्हें व्यक्त करती है। So if you want to know God's will for your life, then look at His promises. और यदि आप परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन के लिए जानना चाहते हैं, तब परमेश्वर के वायदों के अंदर अपनी आंखें लगाएं। Look at the fourth one. और चौथा देखें। What's the fourth one? और चौथा क्या है? God desires us to know His will. और हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसकी इच्छा को जानें। So does God reveal His will? क्या परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करता है? When does He reveal His will? और कब प्रकट करता है परमेश्वर? What should you and I do for Him to reveal His will? और मुझे और आपको क्या करने की आवश्यकता है कि वो अपनी इच्छा को प्रकट करे? Ask, as simple as ask. और साधारण है, पूछे Just seek His will. और उसकी इच्छा को खोजे। Look at Colossians chapter 1, verse 9 and 10. We studied this in the previous publication. और देखिए पहली पुस्तक में हम इसको पढ़े थे, कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़ सकते हैं। Paul wants the believers at the church at Colossae, what does he want them to, have? और देखिए पौलुस जो है कुलुस्सियों की कलीसिया के विश्वासियों को कुछ चाहता है कि उनके जीवन में हो। क्या वो कौन सी चीज वो चाहता है? Yes, filled with the knowledge of what? इस बात के ज्ञान से भरने की बात कर रहा है। His will. और उसकी इच्छा। What else? और क्या है? In all wisdom and spiritual understanding. सारी समझ और आत्मिक समझदारी के साथ में। What else? और क्या है? Before that, उससे पहले walk worthy of the Lord. Yes. और परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाएं। Next one, fully pleasing to Him. और उसको पूर्ण रीति से प्रसन्न करें। What else? और क्या है? Fruitful in every good work. और भले कार्य में फलवंत हो। And the last one, और अंतिम increasing in the knowledge of God's will. और परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान में हम विकास करते जाएं। So the word knowledge here in Greek means full, complete, deep and precise understanding. और यदि हम यूनानी भाषा में ज्ञान शब्द को समझें तो उसका मतलब होता है पूर्ण, भरपूर, गहराई और सटीक समझ। So that means God wants us to have a full, complete, deep, precise understanding of His will. और इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास में उसकी इच्छा के प्रति पूर्ण, संपूर्ण, स्पष्ट, गहराई और सटीक ज्ञान होना अवश्य है। So you can pray and say, God, fill me with a complete, clear and accurate knowledge of your will for my life. और आप इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आप मुझे अपनी पूर्ण, स्पष्ट और सटीक ज्ञान से मेरे जीवन के प्रति आपकी इच्छा का भर दे मुझे। So what does this passage remind us? To know God's will, what do we need? और देखिए वो किस ये पद जो है हमें याद करने के लिए कह रहा है, किस बात के लिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। If we need God's will, what do we need? और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें क्या आवश्यकता है? Knowledge, wisdom बुद्धि and spiritual understanding. और आत्मिक समझ की आवश्यकता है हमें। Now, where does wisdom and spiritual understanding come from? और बुद्धि और आत्मिक समझ कहाँ से आती है? Fear of the Lord. परमेश्वर का भय। आज्ञा कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है आज्ञा?
Where do you get an understanding of, where do you get wisdom and spiritual understanding? और आपको समझ Yeah. और ज्ञान कहाँ मिलता है? From the word of God, the Bible. परमेश्वर के वचन बाइबल से मिलता है। So the more we read God's word, और जितना ज्यादा हम वचन पढ़ेंगे, we know more his will, and we will be more submissive, and we will have more wisdom and spiritual understanding. और उतना ज्यादा हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, उतना ज्यादा हम परमेश्वर के अधीन होंगे, उतना ज्यादा उसकी इच्छा को अपने जीवन के लिए समझ पाएंगे। Then we will walk in his will, we will walk worthy of the Lord, we will please him, we will bear fruit, and we will grow in him. और तब हम परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे, परमेश्वर की योग्यता में चलेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए हम फल लेकर आएंगे और हम उसके ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। But if we neglect his will, the opposite happens. और यदि हम उसकी इच्छा का अनाज्ञाकारिता करते हैं, इसके विपरीत हमारे जीवन में होगा। Opposite is we dishonor him, we displease him, we remain unfruitful, and we stagnate in our spiritual growth. और देखिए इसका विपरीत होता है कि हम उसका अनादर करेंगे, हम उसे पसंद नहीं करेंगे, हम फलवंत नहीं होंगे और हम आत्मिक उन्नति में भी हम बढ़ेंगे नहीं। So we'll meet after the break. और दोबारा ब्रेक के बाद में हम मिलेंगे। Thank you. धन्यवाद आपका।